Hello everyone, myself Shudeshna, and today we are going to discuss the topic about periodic classification. And obviously the previous explanation of periodic table, like the discovery of periodic table by various scientists, Mendeleev's, Newlands, Dobriniers, etc., that you have done already, and that is a simple subject or simple topic, you can easily understood by explaining or by giving an example and by reading a book, right? So I am directly starting from the periodic classification. Periodic classification means trends in periodic table, various kind of trends in periodic table. So today my heading is trends in periodic table. That is the most important thing, because you need to know the trends, and that is how you will be able to give the answer. So there is a simple classification and simple explanation about the trends. So about the trends means बहुत सारा ट्रेंड्स है. यू कैन से एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस. देखो एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस, ये वाला दो पार्ट सेम है, एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस. इज इट क्लियर? पहला ट्रेंड्स. सेकेंड ट्रेंड इज आयोनाइजेशन एनर्जी. आयोनाइजेशन एनर्जी, और यू कैन ऑल्सो से एंथैल्पी. तो शॉर्ट पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी को हम I.E लिखेंगे. ठीक है, इसका बहुत सारा एक्सप्लेनेशन है, एक्सेप्शन भी है नॉर्मल ट्रेंड से. अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब देखेंगे हम, वो भी देखेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब क्या है एंड ऑल. सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को शॉर्ट पे हम E.E लिखते हैं. इज इट क्लियर? एंड द लास्ट द ट्रेंड इज इलेक्ट्रो negativity. And obviously electronegativity is a kind of a subject, or it's a kind of a topic that is easily understandable. So among the following, there is the various trend. The most important is ionization enthalpy. Why ionization enthalpy is most important? Because so many exceptional questions are coming from this part, ionization enthalpy. And after that, so many questions are coming from electron affinity also. Electron affinity is also as well as important. Is it clear? So today I am going to discuss about the atomic size और उसका radius. So ये दोनों सेम ही चीज़ है. अब हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक रेडियस. ट्रेंड्स क्या है? अगर तुम्हारे सामने पीरियोडिक टेबल है तो उसको खोल लो. प्लीज़ ओपन द पीरियोडिक टेबल एंड मेरे साथ कंपेयर करो. अच्छा, you know that in the modern periodic table total 18 groups are there. Total 18 groups are there, and what, 7 periods are there. 7 periods are there. So now along the period और down the group atomic radius vary कैसे करता है, ये हम अब देखेंगे. ठीक है, तो down the group मीन सपोज पकड़ लो ग्रुप 1. ग्रुप 1 पे कौन कौन सा मेटल है बताओ. तो ग्रुप 1 पे अगर तुम जाओगे तो ग्रुप 1 पे मिलेगा तुमको हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम. इज इट क्लियर? तो सिमिलरली अगर डाउन द ग्रुप आओगे लाइक दिस, इफ़ यू आर कमिंग डाउन द ग्रुप, देन अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक लॉ एंड अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक टेबल, द एटॉमिक रेडियस increases. Upper arrow means atomic radius increases. Now you can ask, ma'am, how, why? So if you write the electronic configuration of hydrogen 1, sodium 11, 19 and so on. So let us consider, sorry यहाँ पे lithium भी था, sorry. अच्छा, if you are considering the electronic configuration of hydrogen, that is 1, lithium का होगा 2,1, sodium का होगा 2,8,1, and to that of the potassium it will become 2,8,8,1. So if you are considering the electronic configuration down the group, you can see that मैम अगर एक एक एलिमेंट हम नीचे जा रहे हैं तो डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, तो एक एक करके शेल इंक्रीज हो रहा है. लाइक दैट मीन्स एज वी मूव डाउन द ग्रुप एटॉमिक शेल एक एक करके क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. तो अभी नॉर्मली सोचो, अगर लिथियम का 2 शेल है लाइक दिस, ये तो सोडियम सॉरी न्यूक्लियस है, और सिमिलरली सोडियम का अगर इसको पकड़ लोगे, कितना शेल है सोडियम का, 1 2 3. देखो अगर शेल बढ़ेगा ऐसे तो क्या होगा, एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होगा, राइट. तो इसलिए एज वी मूव डाउन द ग्रुप
number of shell increases, so that's why atomic radius is also increases. So that's all about the atomic radius or trends in atomic radius by explaining the periodic table, and obviously it is down the group. Am I clear? Okay. Now along the period क्या होता है, देखो along the period देखो तुमको तो डाउन द ग्रुप और along the period ये दोनों ही ट्रेंड पता लगना चाहिए, और कैसे होता है ये भी पता लगना चाहिए. सो सपोज अलॉन्ग द पीरियड तुम जा रहे हो, पीरियड 3 को पकड़ लो. सपोज पीरियड 3 सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन. सो ये है एक पीरियड को हम पकड़ लिया है. सो इफ़ वी मूव अलॉन्ग द पीरियड लाइक फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, अलॉन्ग द पीरियड अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो क्या होगा, देखो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाएगा. नाउ वाई दिस ट्रेंड, देखो अगर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखो तो क्या होगा 2,8,1 ऐसे करके. देखो मैग्नीशियम का 2,8,2, एल्यूमिनियम का 2,8,3, सिलिकॉन का 2,8,4 एंड सो ऑन. मतलब आर्गन तक आएगा तो लास्ट शेल जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन से फुलफिल होगा. Am I clear? So now if you say that ma'am, as we move along the period like from left hand side to right hand side, the number of outermost electron क्या हो रहा है, increase हो रहा है. Similarly effective nuclear charge, that is Z effective, that you have done already in chapter 1, that is atomic radius, sorry chapter 2. Z effective मतलब न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन न्यूक्लियस, अभी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन न्यूक्लियस मतलब सपोज तुम्हारे पास ये है एक एटम जिसका है ये न्यूक्लियस जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और सपोज 2 शेल है यहाँ पे. अच्छा सोडियम को ही कंसिडर कर लो, 3 शेल है. चलो 3 शेल है. आउटर मोस्ट शेल पे कितना है इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन है. सपोज दैट इज़ योर इलेक्ट्रॉन. तो ये वाला न्यूक्लियस जो है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा. दैट मीन्स इट विल अट्रैक्ट द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. तो ये जो खींचने का जो पावर है इसको हम बोलते हैं जेड इफेक्टिव और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. एम आई क्लियर? तो ये क्या होगा, देखो अगर तुम अलॉन्ग द पीरियड जाओगे तो एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज एट द आउटर मोस्ट शेल एंड सिमिलरली नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इंक्रीज हो रहा है. देखो 11, 12, 13, 14. बट देखो शेल क्या हो रहा है, शेल रिमेन कांस्टेंट. शेल मीन्स नंबर ऑफ शेल. यहाँ पे देखो नंबर ऑफ शेल रिमेन कांस्टेंट. तो अगर नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट रहेगा और जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो क्या होगा, तो मैम आउटर मोस्ट शेल पे जो इलेक्ट्रॉन है उसका पावर, मतलब उसका पावर मीन्स न्यूक्लियस का पावर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, जो कि ना जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोल रहे हैं हम. तो उसका जो टेंडेंसी होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे वो क्या होगा, इंक्रीज होगा. अगर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा लाइक दिस. अगर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो ये वाला जो आउटर मोस्ट शेल है ये क्या हो जाएगा, अंदर घुस जाएगा, लाइक पेनिट्रेट हो जाएगा लाइक दिस. अगर पेनिट्रेट हो जाएगा तो एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली डिक्रीज हो जाएगा. इज इट क्लियर? So that's all about the atomic radius or trends in atomic radius. If you want to have the notes about the atomic radius only along the period down the group, और बहुत भी explanation है atomic radius का, अभी ख़त्म नहीं हुआ. If you want to know, like have the notes about the atomic radius, you just can knock me once, I can provide you. Thank you.